So hi friends, welcome back to my channel, and in this video we will discuss how to cover the Hindu newspaper under 60 minutes. किस तरह से आप हिंदू न्यूज़पेपर को अंडर 60 मिनट्स कवर कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लैट एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज एक तो आपका इसमें रीडिंग एंड आपका कॉम्प्रिहेंशन दोनों एबिलिटी इसमें बहुत अच्छे से डेवलप होता है. एंड बेस्ड अपॉन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020 we have seen reading comprehension is of utmost importance and you really need to hone your reading skills. So we will be discussing कि how to cover the Hindi newspaper under 60 minutes. किस तरह से आप 60 minutes के अंदर हिंदी न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं. And the reason I'm making this video is because a lot of aspirants had messaged me, had asked me personally that how should we cover the newspaper because it takes them more than 1 hour. Someone said like that it takes them more than 3 hours to cover the syllabus. So I've come up with a very beautiful strategy on how to cover that, and let's discuss this in this video. So let's begin. Now, how to read the Hindi newspaper under 60 minutes. So first of all, before we begin to understand like how to do the reading part under 60 minutes, it is important for us to understand like why is it important? Why is it important to read the newspaper? क्यों हम लोग को newspaper पढ़ना चाहिए? First is it helps us cover the current affairs because what is happening around the world comes in the newspaper. So it is very important. And since we are going to become a lawyer, it is important for us to know what is happening around us in the world. So current affairs cover करने में बहुत important है. Second is the legal and the logical reasoning part. The consortium's official website says that it is possible that you can cover both logical and legal reasoning along with the English from just reading the newspapers properly, right? So प्लीज पे हीट टू दिस. रीडिंग न्यूज़पेपर से आपका बहुत सारा चीज सॉल्व हो सकता है. आप लीगल एंड आपका लॉजिकल पार्ट जो है वो आप कवर कर सकते हैं. एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज द इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको ग्रामर तो आपका इंप्रूव होगा ही होगा, प्लस आपका वोकेबलरी स्किल्स भी इंप्रूव होंगे एंड आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होने वाला है. एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव्स रीडिंग स्पीड. सिंस पैसेजेस ही आने वाले आपके एग्जाम में, क्लैट एग्जाम इज ऑल अबाउट पैसेजेस नाउ फॉर 2021 फॉर्मेट at least. Like in 2020, 2021 is also going to be comprehension based, like or passages based. So you have to read the passage and then answer accordingly. So it is important that your reading speed is very good, else you will not be able to complete the paper on time. So, and reading speedily in a speedy fashion, plus you need to comprehend it well also. So improves reading speed. न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका रीडिंग स्पीड इंप्रूव होने वाला है. नेक्स्ट इज फिफ्थ, डेवलप्स कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल्स. लाइक आई सेड, आपको कॉम्प्रिहेंशन, आपका एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Next is what are the prerequisites? Before you begin reading the newspaper, you need to understand one thing, that you need to know the syllabus. आपके इस एग्जाम के लिए बैठे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का पैटर्न है. किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी वेबसाइट से आपको रेफर करने का जरूरत नहीं. आप कंसोर्शियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. आप उस लिंक को जाके देखिए कि एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपसे डिमांड क्या कर रहा है. So, and then the next part is the previous year question papers. This is very very important. At least 5 to 10 years के क्वेश्चन आप जाके देखिए कि एग्जैक्टली क्या वहाँ पे पूछा जा रहा है ना, आपको क्या पढ़ने का जरूरत है. Not everything under the sun is asked, and there's a pattern to it. Once you start reading the previous year question papers, I would want you to like read it at least 3 times so that आपको समझ में आ पाए कि exactly क्या requirement exam का. So syllabus and the previous year question papers read at least thrice. Then only should you begin to read the newspaper. Else it will be very difficult for you to cover and understand what is going on in the newspaper and what is important from the exam point of view. So our goal is not to become a newspaper reader. Our goal is to clear the CLAT examination. Our focus should be very clear. So syllabus and previous year question papers. Next, a lot of you ask which newspaper should we read? Just two, I would say. Any of the two, Hindu or the next Indian Express. I have a preference for Hindu because the editorials are very good, and but many people complain that it's not easily accessible. But then if Hindu is not available, Indian Express, and if it is available in the physical copy, my first preference would be the physical copy. The answer is in the next slide. Why I prefer physical over e-copy, Hindu or then Indian Express. You don't have to read the Hindustan Time, the Live Mint, not at all required. You will not be able to cover it. You need to be very strategic in your approach. So Hindu and then Indian Express, preference wise. Next is physical or the e-copy. Why do I say physical copy? Why do I have a preference for it? My points are, it helps you in quick note making. Suppose you are reading the newspaper on a laptop, then you need to keep a copy wherein you need to write down all the notes. It will take time, but if you have a newspaper in front of you, you can just quickly jot it down. The possibilities of you fiddling with a
laptop or a tablet along with a digital copy or a e-copy, physical copy gets decreased. So please make sure that you get a physical copy. There are less distractions also that way. And but while you're reading in the e-version, there can be a lot of tabs which are open. It can help, like it will reduce your productivity. So please pay attention to that. Then it becomes easy to revise. Why? If you're making your notes in the physical copy, it will be easier to revise before the bed or after waking up or whenever you're free. It's easy. I know phone is there, but then there's a lot of distractions which are there. Then it sticks to memory better. If you've written down something in your own words, in your own handwriting, it sticks to your memory better. And less distraction, as I said. And 2021 is an offline examination. Please understand this. It's not an online exam like 2020. 2021 में आपका ऑफलाइन में होने वाला है, तो आपको पढ़ना, आपको फिजिकल उसमें ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस उसी में करिए ना। आप अगर डिजिटल में पढ़ोगे, अगर आप डिजिटल स्क्रीन पे ही देखने का आपको हैबिट है, बट देन आपके सामने वो फिजिकल कॉपी आ जाएगा। आपको अंडरलाइन भी करना आना चाहिए। आप जैसे पढ़ रहे हो, आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप वहाँ पे सर्कल कर लो। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बनेगा। एक दिन में आप सोचेंगे, एक हफ्ते पहले आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, नहीं होने वाला। So even if you're giving mocks, give it in the physical copy of paper, and like read the physical newspaper. This is my recommendation. But if e-copy is like which works 100% for you, please go for it. Next is how much time should it take? It should not take more than 60 minutes. Now, the reason why I say not more than 60 minutes is like that's the upper cap. उससे ऊपर लगना चाहिए. Aim for 40 to 45 minutes at the most. Why? Daily 60 minutes. अगर आप रोज का 60 minutes लगा रहे हैं किसी चीज में, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग योर टाइम, राइट? इन अ वे योर टाइम इज लाइक गोल्ड ओवर हियर. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग डेली 60 minutes, कैलकुलेशन नीचे लिखा हुआ है, 60 minutes. If you read it for 30 days and for the next 5 months, like presuming the dates don't get postponed, जून में जो एग्जामिनेशन है आपका, 5 months का आप रीडिंग करोगे 30 days के लिए, एंड देन 60 minutes तक, which is equal to 9,000 minutes. Now 9,000 minutes is equal to 150 hours. 150 hours, if I'm assuming you spend 8 hours a day working or studying, it is approximately 18 days. Suppose this is the bare minimum asking him. I'm asking कि आप 5 months में 18 days devote करिए newspaper को. But if you're investing 3 times, you should multiply this number by 3. So if you're devoting 3 hours every day to read the newspaper, 18 days multiplied by 3 is 54. Now imagine that. 2 months तो आपका खाली न्यूज़पेपर पढ़ने में लग गया। आप बाकी सब्जेक्ट्स करोगे कब? प्लस आपको रिवीजन, आपका मॉक टेस्ट, आपका एनालिसिस, आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस. It's very difficult. Please understand, I'm not trying to demotivate you over here. I'm trying to show you the mirror by saying that please 60 minutes तक restrict करिए. इतना बड़ा ज़्यादा भी कोई वो पहाड़ नहीं है. It is possible and it can be done. I'm here to show you how. Next is, should I make notes? Yes, a very big yes. Well, why? Because else it is difficult to recall in the examination. Suppose you created your notes on OneNote or Evernote or whatever note, right? You've made notes over there. आप अपने notes वहाँ बना लिए. अब आप रिवाइज उसी से कर रहे हो. सपोज आपको एग्जाम के जस्ट 1 घंटा पहले रिवाइज करना है. आप क्या टैबलेट और फोन अपना लेके घूमोगे? Your focus becomes like 100% just before the examination. Like I've appeared for multiple competitive examinations, and I'm talking this out of experience. एंड आई एम सेइंग दिस कि आपको जब पढ़ना होता है, आपको वो लास्ट का जो 1-2 दिन होता है ना, आपको फिजिकल कॉपी ही, फिजिकल पेपर में ही आप रिविजन में आपको मजा आने वाला है, बहुत जल्दी से तेजी से होने वाला है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मेक नोट्स इन विथ योर ओन हैंड राइटिंग. इट शुड बी वेरी माइक्रो नोट्स, स्मॉल. आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपको पैराग्राफ्स में भी नहीं लिखना है. इट शुड बी जस्ट वन वर्ड. एंड ट्राई एंड क्रिएट योर नोट्स इन माइंड मैप्स. आई एम रिपीटिंग, ट्राई एंड क्रिएट योर नोट्स इन माइंड मैप्स. If you don't know what mind maps are, please Google the term mind maps. Mind maps आप करिए, mind maps फॉर्मेशन या उसमें पैटर्न में बनाइए अपने नोट्स को, एंड मेक इट विथ योर ओन हैंड्स. पेन चलाइए, थोड़ा मेहनत करिए, आपको फायदा होने वाला है. नाउ मेनी ऑफ यू ऑल्सो आस्क्ड कि करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ना चाहिए कि नहीं. आई वुड से येस, बिकॉज करंट अफेयर मैगजीन कौन निकालता है? देयर इज अ टीम ऑफ पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, हु मेक नोट्स. अगर आप नोट्स बनाएंगे एंड वो नोट्स बनाएंगे, दे आर अ टीम, यू आर इंडिविजुअल. प्लीज अंडरस्टैंड, वो लोग का बेटर नोट्स बनने वाला है, एंड दे आर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू. बट यू शुड नॉट सब्स्टिट्यूट दिस फॉर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर. द रीजन आई एम टेलिंग दिस इज, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको एक इम्प्रिंट आपके माइंड में आया. सेकंड, आप रिवाइज करोगे अपने हैंड रिटन नोट्स को. थर्ड विल बी द करंट अफेयर मैगजीन. दे आर ओनली फॉर रिविजन पर्पस. इंसान को कहानी याद रहता है. अगर मैं आपको अभी बोलूंगा कि आप, मेरे को दिल चाहता है, या आप मेरे को ये जवानी है दीवानी का मूवी बताइए, आप मेरे को धड़ 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 बता देंगे अभी. बट अगर आप मेरे को 2 दिन पहले जो आपने करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ा, उससे आपको मैं पूछूंगा, आप बता पाओगे? नहीं.
बिकॉज दोर आर फैक्ट्स, वो आपको फैक्ट है, आपको थाली पे खाली परोस दिया है। बट अगर आप जब खाना बनाओगे, आप खाना बनते हुए देखोगे तो आपको उतना ही मजा आएगा और आपको समझ में आएगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका रीडिंग इंप्रूव होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको पढ़ना न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया गया कि आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम नाउ। करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़िए ओनली फॉर रिवीजन, उसका भी नोट्स बनाइए, बट माइक्रो नोट्स, शॉर्ट नोट्स। कैसे बनाना है मैं बताऊंगा। क्यों बनाना है? छोटा अगर आपका नोट्स रहेगा, आपको रिवीजन में उतना ही ईजी होने वाला है, उतना ही आप एग्जाम के पहले पहले आप बार बार रिवाइज कर पाओगे। मैं एटलीस्ट आपको बोलूंगा 5 बार रिवाइज करिए। जो भी साल का टॉपर होगा वो एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स रिवीजन करके जाएगा। अगर आप लेट हो, आप अभी भी कैचअप कर सकते हो, 5 महीना ही बचा हुआ है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपने नोट्स किस तरह से बनाता हूँ। So this is my note copy. Like it's very small, and that is why I chose this कि क्योंकि मेरे को छोटे नोट्स बनाना पड़े। Now example, I'll just show you. This is my 1 day का notes only. So आपको एक दिन के अंदर ही एक पेज को भरना है, उससे ज्यादा नहीं। सपोज आप एग्जाम्पल लो, आप एक A4 पकड़ते हो, राइट? आप, आई एम जस्ट टेकिंग द बेयर मिनिमम, इतना मिनिमम तो आप कर ही रहोगे, आई एम श्योर। A4 का आप एक शीट लिए, आप उसमें एक दिन का नोट्स बनाए। आप अभी नेक्स्ट 30 डेज इंटू 5 कितना हुआ? 150 डेज के लिए तो आप पढ़ोगे। एटलीस्ट नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, राइट? 150 डेज के लिए आप नोट्स बनाओगे। आप सोचो 150 A4 को रिवीजन करना बिफोर द एग्जामिनेशन, इज इट फीजिबल? विल यू बी एबल टू रिकॉल इट इन द एग्जामिनेशन? आपको मेमोराइज रहने वाला है क्या? नहीं। सो प्लीज नोट्स उतना ही बनाइए जितना आप उसको डाइजेस्ट कर पाए, उतना आपको 3 से 5 बार रिवाइज कर पाए। जो लोग क्लास 11 में प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं, दे हैव एन अपर हैंड बिकॉज दे ऑलरेडी कवर्ड द थ्योरी। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ, यू हैव लिमिटेड टाइम, यू आर कंस्ट्रेन्ड ऑन टाइम। सो प्लीज मेक श्योर कि आप नोट्स लिमिटेड बनाएं, माइक्रो नोट्स बनाएं, छोटा से छोटा बनाएं, कीवर्ड्स यूज करिए, ओनली कीवर्ड्स, एंड देन माइंड मैप के थ्रू बनाइए। डोंट हैव टू राइट फ्रेजेस, डोंट हैव टू राइट पैराग्राफ्स, यू डोंट हैव टू राइट एन एस्से। एंड प्लीज रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होना चाहिए माइंड मैप्स के थ्रू। अगर आपको जानना है कि नोट्स कैसे मैं बनाता हूँ और किस तरह से बनाया जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से। आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। बट प्लीज माइक्रो नोट्स एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बोल्ड में इसीलिए लिख रखा है, यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट मिनिमम 5 टाइम्स। नाउ टाइम मैनेजमेंट, वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत लोगों का मैसेज मेरे पास आता है मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर या भैया प्लीज आप मेरे को ये बताइए कि मैं अपने बोर्ड्स के साथ क्लैट का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करूँ। आई हैव 2 वर्ड्स टू दिस, लाइक 2 पॉइंट्स, परेटोज लॉ एंड द पार्किंसंस लॉ। क्या होता है, अब आप मेरे से पूछोगे पार्किंसंस लॉ क्या होता है? कि याद है आपको जब टीचर असाइनमेंट देती थी एक हफ्ता पहले कि 7 दिन बाद डेडलाइन है, बट हम लोग सब लोग 7 दिन 6 दिन बिता देते थे मस्ती में, फिर लास्ट एक दिन में ही सारा अपना होता था, या एक रात पहले 1 घंटे में अपने कर लेते थे। या टीचर का जो डेडलाइन सबमिशन है 12 बजे का, हम लोग 11 साढ़े 11 बजे बैठ के कर लेते थे, या तो टेपते थे कहीं से कॉपी कर लेते थे या खुद का करते थे। दिस इज पार्किंसन लॉ। जितना टाइम आप उसको इंपॉर्टेंस में दोगे उतना ही टाइम वो स्ट्रेच करेगा। सपोज आपने दिया है कि मेरे को ये बुक 4 घंटा में कवर करना है, तो वो बुक 4 घंटा में ही कवर होगा, उससे कम में नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप अ बॉटल नेक। एक डेडलाइन सेट कर लीजिए, डेडलाइन सेट कर लेंगे उसके बाद ही आप उतने टाइम में कवर कर पाएंगे। सो आई वांट यू टू सेट अ डेडलाइन ऑफ 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम, ताकि वो 60 मिनट्स तक एक्सीड नहीं कर पाए। आपको न्यूज़पेपर उतने में कवर करना है, आपको और भी सब्जेक्ट्स कवर करना है, आपको बोर्ड्स भी देना है सर, प्लीज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट इज परेटोज लॉ। परेटोज लॉ क्या होता है? 80-20 रूल होता है। 80-20 रूल क्या होता है? 20% ऑफ योर एक्टिविटीज यील्ड 80% ऑफ आउटपुट। आप 20 काम करेंगे जिससे आप 80% तक आप आउटपुट अचीव कर सकते हैं। सपोज 100 काम है, उसमें 80, 20 काम करके आप 80 चीज अचीव कर रहे हो। रेशियो देख रहे हो, मतलब इतना ज्यादा ग्रोथ है उसमें। आई हैव हाईलाइटेड दिस इन येलो ओवर हियर। जो भी ये 6 चीज कर लेता है, ट्रस्ट मी, वो टॉपर तो होगा ही, वो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करने वाला है क्लैट को। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको लिख लीजिए, कागज पे चिपका लीजिए आपके सामने। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे वेरी वेरी मतलब स्टार मार्क मार लो, उसमें स्माइली बना लो, कुछ भी कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर आपका रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग सारा कवर होता है इससे, करंट अफेयर्स भी। नेक्स्ट इज रिवीजन। रिवीजन जो आप पढ़ रहे हो, जो नोट्स बना रहे हो, उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मॉक्स प्लस उसका एनालिसिस, आप कहाँ फॉल्ट कर रहे हो। अगर आपने ये चीज कर लिया, ये चीज आपने 5 चीज 6 चीज जो भी है उसको आपने कर लिया, आप टॉप कर जाओगे। ये मैं रिटर्न में दे सकता हूँ सीरियसली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, न्यूज़पेपर, रिवीजन, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन दिस ऑर्डर ओनली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करिए, पहले सिलेबस देख लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, फिर न्यूज़पेपर,
देन मॉक्स दो और उसका फिर एनालिसिस करो, एंड रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है ही मॉक्स देने के पहले। सो या नेक्स्ट इज व्हाट टू अवॉइड। आपको लोकल न्यूज़, रीजनल न्यूज़ न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सपोज मैं दिल्ली में हूँ या मैं बैंगलोर में हूँ या मैं हैदराबाद में या कोलकाता में हूँ, वहाँ का न्यूज़ मेरे को दिखेगा, बट ये क्लैट एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन, तो नेशनल लेवल पे होगा ना यार, नेशनल लेवल का न्यूज़ होगा। सपोज जो हैदराबाद में बंदा बैठा है उसको बैंगलोर का क्या न्यूज़ से लेना देना, या वो कैसे पढ़ पाएगा, उसको न्यूज़पेपर में आएगा नहीं। सो अवॉइड लोकल प्लस नेशनल न्यूज़। अवॉइड स्पोर्ट्स। ये सब मैग्नेट, चुंबक के तरह होता है, आपको अट्रैक्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। स्पोर्ट्स आप बाद में पढ़ लेना, क्लियर कट एग्जामिनेशन, फिर लॉ यूनिवर्सिटी में जाके मज़े ही मज़े, स्पोर्ट्स खेलना भी पढ़ना भी, बट स्पोर्ट्स यहाँ पे नहीं पढ़ना आपको। प्लीज़ बी वेरी फोकस्ड, योर एम इज़ टू क्लियर द क्लैट एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, पेज थ्री न्यूज़ एकदम नहीं करना है। हिंदू में ऐसे बहुत कम आता है, बट अवॉइड दैट एट ऑल कॉस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आपको एक पढ़ रहे तो मत करो यार, टाइम वेस्ट होगा। क्राइम रिपोर्टिंग्स, किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी ने किसी को फांसी लगा दिया, नहीं, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल न्यूज़, नॉट एट ऑल अगेन इम्पोर्टेंट। यहाँ रैली निकल रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्म लॉज आर इंपॉर्टेंट, बट जो उसके बारे में जो इतना ड्रामा और पॉलिटिक्स हो रहा है, नहीं करना है अपने को, वो चीज़ में नहीं घुसना है। लॉयर बन जाना, फिर काम कर लेना अपना इसमें आके फील्ड में, बट अभी नहीं। हिंदू का मैगजीन जो आता है संडेज को, उसको अवॉइड करिए। लाइफस्टाइल न्यूज़, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। हाउ टू मेडिटेट एंड ऑल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट टू रीड, ये मेन है, इसको बहुत कान खोल के आँख खोल के सब जगह से सुनिए भी और देखिए भी। फ्रंट पेज, फ्रंट पेज में सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको कुछ कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने हैं, बट फ्रंट पेज पे आपको एक बार ग्लांस जरूर करना है। सेकंड इज एडिटोरियल, भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब फिर हिंदू मत पढ़ो, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। एडिटोरियल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माई ट्रिक टू लाइक माई ट्रिक टू कवर द न्यूज़पेपर वेरी क्विकली इज, आपको जैसे ही न्यूज़पेपर मिले सुबह पहले आप सीधा एडिटोरियल पेज खोलो, एडिटोरियल पढ़ने आ जाओ। क्यों? बिकॉज एक लीनियंसी होता है, एक फ्रिक्शन होता है कि मेरे को यार एडिटोरियल नहीं पढ़ना, बहुत लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप 20-21 दिन तक करते हो जाएगा। आप न्यूज़पेपर जब मिलेगा आप एडिटोरियल्स को खोलो, एडिटोरियल को पढ़ो, एडिटोरियल से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो, फिर फ्रंट पेज पे आओ, फिर बाकी सब न्यूज़ पेजेस पे आओ। एडिटोरियल क्यों? और मैं बोलता हूँ कि शुरू में पढ़ना चाहिए, बिकॉज फ्रेश माइंड रहता है आपका। एडिटोरियल थोड़ा हैवी होता है हिंदू का, वोकेबलरी वाइज भी, एंड उसका जो कॉम्प्रिहेंशन है थोड़ा टाइम लगता है एनालाइज करने में। तो फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, सुबह पहले पढ़ेंगे, खाली दिमाग से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी होगा। एडिटोरियल्स पढ़िए, फ्रंट पेज पढ़िए। नेक्स्ट इज बिजनेस, बिजनेस में इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल न्यूज में भी इंपॉर्टेंट होता है, बट फ्रांस में कुछ हुआ, वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रांस का अगर किसी क्लाइमेट चेंज या यूएन रिलेटेड कुछ न्यूज हुआ, यूएन बॉडी से, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस किया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, कि यूएन रिलेटेड जितना न्यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या कोई भी लॉ हो गया, या जैसे ग्रुपिंग्स का सार्क हो गया आपका, या आरसीईपी के हो गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ गए, ग्रुपिंग्स के ऊपर हो गया। तो डब्ल्यूटीओ हो गया, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कुछ आ गया, या जी7 के ऊपर आ गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका ध्यान दीजिए। न्यूज़ पेज जो नेशनल लेवल पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फ्रंट पेज से बहुत बार न्यूज़ पेज पे आ जाता है आर्टिकल्स, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द ओपन एंड, ओपन एंड एडिटोरियल जब आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे होते हैं हिंदू के, उसके राइट साइड पे ही ओपन एंड होता है, तो ओपन एंड भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर है, ओपन एंड में इट इज ओपन, कोई भी आके लिख सकता है उसमें, बहुत बार एडिटर्स भी होते हैं जो हिंदू के लिखते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड न्यूज़ ओवरऑल आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा, हाँ, कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अवॉइड, प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिए। फिजिकल कट पेस्ट मत करिए आर्टिकल का नोटबुक पे। बहुत लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर, फिजिकल न्यूज़पेपर लेते हैं, उसका आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट उसको कट करके कॉपी में चिपका देते हैं। मत करिए, आप ना न्यूज़पेपर पढ़ोगे कभी, ना वो आर्टिकल जो चुका है, टाइम आपका वेस्ट होगा, आपके पास 24 घंटे यार, उसको जुडिशियली और अच्छे से यूज करिए। नेक्स्ट इज रीड ईच लाइन विद माइक्रोस्कोप, ये नहीं करना है क्रॉस, ये नहीं करना है। रीड ईच लाइन विद माइक्रोस्कोप मतलब आपको मैक्रो व्यू, आपको एक ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, आपको बर्ड्स आई व्यू लेना है, कि भैया ये जो इकोनॉमी के बारे में बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट का वैल्यू बढ़ रहा है, रियल इकोनॉमी का गिर रहा है, समझिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको कहानी समझना है, आपको कहानी में प्ले नहीं करना है कैरेक्टर, आपको कहानी को समझना है। ऊपर से देखिए आप मैक्रो, जब भी आप इन डीप घुस रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा मैक्रो व्यू लो, थोड़ा जूम आउट करो, कि भैया जूम आउट करके क्या बोलना क्या चाह रहा है ऑथर, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, ये क्या है एग्जैक्टली, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हर लाइक लाइन को एकदम लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस मत पढ़िए, समझिए ओवरऑल क्या हो रहा है, जस्ट ओवरऑल एक लीजिए इम्प्रिंट, फिर चलिए आगे। रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर मोर देन एन आवर मत करिए, कैलकुलेशन आपको दिखा दिया, आप ऑलरेडी 18 डेज लगा रहे हैं अपने 5 मंथ्स में, तो उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का टाइम जरूरत नहीं है। आरओआई देखिए कितना क्वेश्चन आता है करंट अफेयर जीके से, और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूज़पेपर। सो प्लीज़ 18 डेज से ज़्यादा नहीं लगाना अपने को।
पाइलिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स इज इक्वल टू मेंटल ग्रेवयार्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं भी जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता था, न्यूज़पेपर्स ना रूम में पाइल अप हो रहते थे। एक होता है ना इनर्शिया आ जाता है कि मैं आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, फिर कल भी नहीं पढ़ा, फिर कल दूसरा भी नहीं पढ़ा। वो पाइल अप हो के ना वो रद्दी में बिकता है सीधा, और उसका कुछ भी नहीं मिलता, 20 रुपये भी नहीं मिलता। और आपके यहाँ पे माइंड में ब्लॉकेज हो जाएगा थॉट के लेवल पे कि यार ये इतना सारा मैंने तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जबकि आप कवर कर रहे हो कि दूसरा सिलेबस में भी, शायद क्वांट का कर रहे होगे, या मे बी आप इंग्लिश लैंग्वेज का वोकेबलरी कर रहे होगे। बट वो न्यूज़पेपर पाइल अप, वो न्यूज़पेपर रूम में दिखने से ही परेशानी होगा। प्लीज उसी के उसी दिन न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसी दिन डिस्कार्ड कर दीजिए नोट्स बनाने के बाद। साउंड्स वेरी क्रूड बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाद में आप उस चीज को, न्यूज़पेपर को अच्छे से रख लेना, बट अभी उसी दिन पढ़ना है, उसी दिन हटाना है, रूम में मत रखिए। राइट। नेक्स्ट इज नाउ व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। बेस्ट स्ट्रैटेजी इज रीड एडिटोरियल्स फर्स्ट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। एडिटोरियल को सबसे पहले उठाइए, फ्रेश माइंड से सुबह पहले पढ़ के खत्म करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको एडिटोरियल्स में टाइम लग रहा है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल। आई अंडरस्टैंड दैट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसका लैंग्वेज। अगर सपोज आपको 60 मिनट्स में, आप 30 मिनट्स एडिटोरियल में दे रहे हैं और बाकी पेपर पेजेस में 30 मिनट्स दे रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। प्लीज अंडरस्टैंड कि 30 मिनट्स इज ओके टू गिव। एडिटोरियल्स थोड़े उसके आपके हैवी इंटेंसिव होते हैं, तो इट टेक्स टाइम, इट इज ओके। रीड, बट रीड एडिटोरियल्स फर्स्ट, देन न्यूज़पेपर को सबसे पहले खत्म करिए दिन भर में। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है कि कोई भी डिफिकल्ट काम हो उसको आप पहले सबसे पहले दिन में कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका दिन हल्का हो जाता है। डेली माइक्रो नोट मेकिंग, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ा उसके एक माइक्रो नोट्स जो मैंने दिखाया, इस तरह के छोटे से कॉपी में आप बना लीजिए, या A4 को आप हाफ में डिवाइड कर लीजिए, उतने हाफ में आपको कवर करना है। पार्किंसंस लॉ टाइम में जैसे होता है वैसे चीज़ों में भी होता है, उतने से टाइम चीज़ में आपको पूरा काम को कंप्लीट करना है। देन ऑलवेज टेक द मैक्रो व्यू। एंड अच्छा, नोट्स जो बना उसको रिवीजन भी बहुत जरूरी है, उसी दिन रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले दिन आप जब ऐसे करके जब पूरे हफ्ते भर का नोट्स आपको बन जाए, एंड में सैटरडे संडे कोई भी डेट डिसाइड कर लीजिए, सारा नोट्स को रिवीजन करना है। उस नोट्स को आपको एटलीस्ट 3 से 5 बार मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, रिवाइज करके जाना होगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज मैक्रो व्यू ऑलवेज। एक बर्ड्स आई व्यू लीजिए, एक मैक्रो व्यू लीजिए कि एग्जैक्टली भैया क्या न्यूज़ है, क्यों ये पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या इसका मतलब है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट वाई व्हेन वेयर हाउ। ये चीज़ मतलब सारा चीज़ को आप ध्यान में क्वेश्चनिंग माइंड के साथ करिए। नेक्स्ट, एडिटोरियल जब भी आप पढ़ लो, अपने आप को ही, किसी और को नहीं, एडिटोरियल को आप 2 से 3 सेंटेंस में बता दो कि भैया ये एडिटोरियल में है क्या। अगर आप कर लिए तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि आपने एडिटोरियल्स को समझ लिया है। बहुत बार होता है हम एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, बस उसके उसके दुनिया में खो जाता है। भैया आपको ये समझाना है कि एडिटोरियल्स में होता क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सप्लेन इन 2 to 3 sentences what the editorial is talking about। क्या एडिटोरियल बोल रहा है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जितना सिंपल रहोगे प्रिपरेशन को, उतना आपका बेनिफिट रहेगा। इतना सारा बुक्स, इतना सारा पाइल अप करके कुछ नहीं मिला किसी को आज तक। बुक कलेक्टर नहीं बनना है अपने को, अपने को लॉयर बनना है। तो प्लीज एडिटोरियल जो पढ़ोगे 2 से 3 सेंटेंस के अंदर सम अप कर दो। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। इन डीप अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब पूरे साल भर में 30 से 40 टॉपिक ही ऐसे होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्म लॉज हो गया, इंटरकास्ट फेथ मैरिज वाला जो टॉपिक आ गया, फिर आपका कोविड हो गया। ये सब टॉपिक्स के बारे में एग्जाम में आना ही आना है। इन सम वे और द अदर कुछ ना कुछ पैराग्राफ, कुछ ना कुछ एडिटोरियल, कुछ ना कुछ जर्नलिस्टिक सोर्सेज से आर्टिकल आएगा टॉपिक्स के ऊपर। माइंड यू, टॉपिक्स के ऊपर, इश्यूज के ऊपर। इसीलिए मैंने अपने करंट अफेयर्स वाले प्रिपरेशन वीडियो में बोला था, यू डोंट हैव टू कवर द न्यूज़पेपर फॉर एग्जाम, यू हैव टू कवर द इश्यूज। इशू बेस्ड पढ़ाई आप रखिए, करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं। सो 30 से 40 टॉपिक कर लिए। जैसे मैंने आपको बताया एक फार्म लॉस होता है, आपको यूएस इलेक्शन का मे भी कुछ आ सकता है, उसमें से कोविड का आ सकता है, आपका जो इंटरकास्ट फेथ मैरिज जो यूपी में जो लॉ पास हुआ उसके ऊपर आ सकता है। आप एक काम करिए, इसी में 30-40 टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए। राइट। वो 30-40 का टॉपिक का लिस्ट बनाने के बाद आप एक दिन पकड़िए, एक दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वो 30-40 टॉपिक को आप गूगल करिए खाली, एंड उसका इन डीप पढ़िए। बेस्ट वे इज इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन करके एक आता है, आप उसके बारे में वहाँ पे अगर कुछ छपा हुआ ऑनलाइन तो आप वो वहाँ पढ़ सकते हो। यू कैन रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन में। सेकेंड इज जस्ट गूगल द टर्म्स, द keywords, the topic, and get an overview analysis, or you can just YouTube it, or you can just Google it। उससे क्या होगा कि you will be able to get a comprehensive knowledge about that particular topic, which is very important, right? Because in this examination you'll be getting a passage, and based on that passage the questions will be based। So after you know the important topics, you should know in and out of that topic entirely। 30 से 40 टॉपिक्स है, ज़्यादा नहीं होने वाला है। So please make sure that you cover those 30 to 40 topics। Now after this in-depth analysis of how to read the newspaper, I'm going to show you
फॉर टुडेज न्यूज़पेपर कि कैसे मैं अप्रोच करता हूँ न्यूज़पेपर को एंड हाउ यू शुड डू. सो लेट्स बिगिन. सो हिंदू न्यूज़पेपर आज का है 20 जनवरी का. एंड लेट्स बिगिन कि कौन सा हम लोग को पढ़ना चाहिए आर्टिकल्स या नहीं. फर्स्ट इज क्वेश्चन आर टू रिटर्न फॉर बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट. इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा लीगल एस्पेक्ट है उसमें. सो ये हम लोग पेज 9 पे ही देखेंगे. जस्ट मिनट. नेक्स्ट इज इंडिया आस्क्स व्हाट्सएप टू रिवोक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इसको प्लीज प्रिवेसी को आर्टिकल 21 में जो आता है राइट टू प्रिवेसी में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके ऊपर एंड वो सब को प्लीज देखिएगा. 11 लेबर्स डेथ का क्राइम रिपोर्टिंग काइंड ऑफ यार एक्सीडेंट नहीं करना है. यूएस प्रिपेयर्स. ठीक है यूएस इलेक्शन को ओवरऑल देख लिया बट इतना ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज जो इंडिया का टेस्ट है बहुत अच्छा जीत था बट नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. गुपकार अलायंस ये पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया नहीं. सुप्रीम कोर्ट पैनल लेज आउट रोड मैप ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स इशू के में आपका फार्म लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो फार्म का लॉज जो 3 लॉज पास हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से वो इंपॉर्टेंट है बट ये जो डेली बॉल बाय बॉल अपडेट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. सो नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. वैक्सीन कवरेज का जो है इंपॉर्टेंट है बट ये जो डेली अपडेट्स आ रहे हैं अभी की वैक्सीन लग गया इतने लाख लोगों को लगा है नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. कैंसर केयर पैनिक नो मोर. यस नाम इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ उन्होंने क्या किया था इसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़िए बट उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है. बट हाँ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. नाउ नेक्स्ट इज हम लोग देखते हैं. ऐड है ऐड का ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज सिटी न्यूज़. सिटी न्यूज़ में आपको कम्प्लीटली सेफली अवॉइड कर दीजिए. नहीं नहीं पढ़ना है. ये भी नहीं पढ़ना है. ए क्यू आई डिटेरेशन सिवियर कैटेगरी. जो ये ए क्यू आई है सॉरी ये जो ए क्यू आई है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं क्या होता है एक बार थोड़ा सा गूगल कर लीजिए बट उससे ज़्यादा इन डीप पढ़ने का जरूरत नहीं है. डी यू टीम फार फ्लंग रीजन्स ऑन रिसर्च नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड रिपब्लिक डे के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे शेयर किया गया है. देन रेड फोर्ट क्लोज टिल रिपब्लिक डे आफ्टर बर्ड फ्लू फाउंड इन रेड क्रो. हाँ इसमें ये जो बर्ड फ्लू का बहुत ज़्यादा न्यूज़ आया था अभी अचानक से. तो बर्ड फ्लू के बारे में आप पढ़ लीजिए क्या स्ट्रेन है क्या एग्जैक्टली नहीं है कि आपका यहाँ पे जैसे लिखा हुआ होगा आपका कि ये H5N8 है या H5N9 है जो भी आप पढ़ लीजिएगा उसको कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए. बस उससे ज़्यादा नहीं. वन वर्ड होना चाहिए. रिमूव इलीगल कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ग्रीन जोन. अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लोकल न्यूज़ है. लोकल न्यूज़ है आपका. नेक्स्ट इज सिटी. सिटी न्यूज़ अभी भी आ गया है. शार्प प्रेजेस पुलिस फॉर हैंडलिंग ऑफ राइट्स जो आपका फार्म लॉज के जैसे होता है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ था. नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. हेल्थ वर्कर्स नॉट ऑन डेली लिस्ट कैन नाउ गेट कोविड 19 शॉट. बॉल बाय बॉल अपडेट मत पड़ेगा अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने वाला है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन. वैक्सीन क्या है कौन से इंस्टीट्यूट से मैन्युफैक्चर होता है वो आप कर सकते हैं. नॉट गेटिंग एक्सेस टू चार्ज शीट. ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. बस ये जान लेना कि चार्जशीट क्या होता है थोड़ा बहुत इतना तो आप लॉक करें तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज फिजिकल हियरिंग. सुप्रीम कोर्ट टेल्स लॉयर्स टू अप्रोच हाई कोर्ट. एंड सेंसर्स इंश्योर. ये थोड़ा एक बार देख लेना कि क्या एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी है बट नॉट एट ऑल इतना इंपॉर्टेंट है. फिजिकल हियरिंग. सुप्रीम कोर्ट टेल्स लॉयर्स टू अप्रोच हाई कोर्ट. नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कोई उतना ज़्यादा मास ग्रेविटी का भी नहीं कि जो एक फ्लैट में पूछा जाए तो उतना नहीं ये चीज़ नहीं ज़रूरत है आपको. वाइफ ऑफ कॉन्स्टेबल वू डाइड ऑफ वायरस गिव्स बर्थ. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिग नो नहीं. आरटी एक्टिविस्ट मूव्स हाई कोर्ट फॉर डिटेल्स ऑन आरोग्य सेतु. नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट बट अब हाँ आरोग्य सेतु एग्जैक्टली किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. तो आरोग्य सेतु क्या है देखिए मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली की टर्म्स. देखिए की टर्म्स आप उठाइए. सॉरी अमिताभ जी. की टर्म्स को आप उठाइए एंड उससे ब्रेनस्टॉर्म करिए कि व्हाट. फिर आपका वाई. फिर आपका व्हेन. फिर आपका वेयर. मतलब आप पूछिए कि जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है. अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या है एग्जैक्टली कौन सा बॉडी इसको करता है. बस इतना था बेसिक ज़्यादा नहीं. इन डीप मत घुसिएगा. रिसर्च नहीं आपको पीएचडी नहीं करना. नेक्स्ट बीजेपी प्लान डोनेशन ड्राइव फॉर राम टेम्पल. नॉट एट ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. बीजेपी वाले से नहीं. ये सब न्यूज़ और पॉलिटिकल वाला उस चीज़ को अवॉइड करिए रिलीजन और ये सबको. Notice to Haryana government over Panchayati Raj Act. So this is important. Panchayati Raj Act is a very important thing.
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉ और ये सब आता है आपका उसमें, तो ये पंचायती राज एक्ट को भी बहुत ध्यान रखना। मैं थोड़ा अच्छे से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पंचायती राज एक्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ कांग्रेस पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं, बीजेपी नहीं, ऑब्ituary एड्स नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। फार्म लॉज, देखिए यहाँ पे फार्म लॉज फिर से आ रहा है। देखिए एक रिकरिंग इशू है तो बार बार उस बार उसके बारे में न्यूज़ आएगा ही। अगर वो बार बार आ रहा है न्यूज़ में तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो ध्यान रखना है। फार्म लॉज एक इंपॉर्टेंट, जो 30-40 टॉपिक्स का मैंने बोला था, दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। महाराष्ट्र वेलनेस, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, नंबर्स का कुछ आने नहीं वाला आपको। एंड अगर आता भी है, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से ना, आप उतना टाइम मत लगाइएगा उसमें। नेक्स्ट इज सेंटर टारगेट्स दिल्ली ओवर। अच्छा, ये जो है यहाँ पे वेदर वॉच डेली अपडेट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना उससे, कुछ लेन देन नहीं है। लोन रैकेट नहीं, क्राइम न्यूज़ नहीं, सेंटर टारगेट्स दिल्ली ओवर यमुना पोल्यूशन नहीं। बट इसमें जैसे अगर कुछ आपको टर्म्स मिल जाते हैं, जैसे होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, फिर आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है कि जो आपका वो कम होता है नंबर, अगर वो है ऐसा कहीं मेंशन में, एक बार बस देख लीजिएगा उस चीज़ को कि है कि नहीं उसमें। डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन एग्जैक्टली होता क्या है? ऑक्सीजन जो वाटर में होता है उसका कंटेंट कम हो रहा है। कंटेंट कम क्यों कम होता है? क्योंकि पॉल्यूटेंट्स जो होता है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है इसका मतलब पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहा है, और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है इसका मतलब पॉल्यूटेंट्स कम है। ये रिलेशन है। सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेटस रिपोर्ट ऑन रिवर वाटर क्वालिटी। नहीं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कोई कमिटी बैठाया हुआ है उस रिपोर्ट के लिए, मतलब उस रिवर वाटर के लिए, तब इम्पोर्टेंट है, वरना नो, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र मूवी चैनल हेल्ड इन कॉपीराइट वायलेशन की नहीं। अच्छा, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मैं तो बोलूँगा आप न्यूज़पेपर खोलते ही सबसे पहले इस आर्टिकल को देखो। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन रीडिंग द न्यूज़पेपर इज कम टू दिस पेज। दिस इज लाइक योर टेम्पल, मतलब you should come here and like just be there. A plaintive lament on liberty that rings hollow. As examples show, the judiciary's callous attitude at every level towards human liberty is destructive of the rule of law. Rule of law क्या होता है? क्वेश्चन करो इस चीज़ में। इसको आई थिंक नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स मैक्स लगना चाहिए आपको कवर करने में। 10 to 15 मिनट्स में पढ़ो। सबसे पहले मैं बोलूँगा इस चीज़ को पढ़ो आप, इंट्रोडक्शन बॉडी को, फिर पढ़ो ये चीज़ को। इससे क्या होता है कि आपका ये इंट्रो हो गया या फिर आपका कंक्लूजन हो गया। अब आपको अगर ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आया है, तो ये बीच का जो मसाला है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज ट्राई टू समराइज इट इन 2 to 3 लाइन्स। ये अगर आप कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आप कर पाओगे। 2 से 3 लाइन में सिंपलिसिटी, सिंपली आप बता पाओगे ये क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मेरे को तो अभी तुरंत देखने में समझ में नहीं आ पा रहा है, बट आप इसको पढ़ोगे तो समझ आएगा। इन बैड फेथ स्टेट इंटिमिडेशन ऑफ प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स कैनॉट सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग। ये पढ़ लेना, ये एनआईए के ऊपर है, जो फार्म लॉज के रिगार्डिंग एनआईए का वहाँ पे आ गया था सीन, तो उसके बारे में, तो इसको एक बार पढ़ लेना कि क्या होता है। अच्छा, इसके साथ ये भी पढ़ लेना कि एनआईए क्या करता है क्या नहीं करता। दिस इज इम्पोर्टेंट। इंडिया नेपाल रिलेशंस इन अ न्यू ट्रांजिशन। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर उनके वो आए थे यहाँ पे, तो उसके लिए क्या बातचीत हुआ था, क्या डायलॉग्स हुआ था, क्या बॉर्डर इश्यूज है, जो आपका काला पानी वाला था, आई थिंक इफ आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। वो 3 बॉर्डर के जो ऊपर जो उन्होंने एक नया मैप लॉन्च कर दिया था, उसके ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड स्पेसिफिकली इंडिया के जो नेबर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। Top of the heap. India series win. Nay, not at all important. Letters to the editor, not at all important. So this is how you approach. This page should not take like more than editorial का जो पेज है 15 मिनट्स यहाँ, 5 मिनट्स यहाँ, 5 मिनट्स यहाँ. It should take at like 20 to 25 minutes. मतलब इससे ज़्यादा ट्राई करना, मतलब ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ 20 to 25, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ओपन एड में जाता है, ओपेड। और स्ट्रेस टेस्ट फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी, बहुत ज़्यादा अमेरिकन डेमोक्रेसी पे आ रहा है, इतना भी नहीं, हम लोग इंडियन डेमोक्रेसी है पहले तो उस पर ध्यान देते हैं। इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेसी पे इतना ही, बट ये समझना कि एग्जैक्टली ट्रम्प, जो ट्रम्पिज्म का बात हो रहा है यहाँ पे जैसे ट्रम्प जो चले भी गए बट उनका जो आइडियोलॉजी वो रह रहा है, तो वो क्या एग्जैक्टली है, ये चीज़ बेसिक आपको अवेयरनेस होना चाहिए। द थ्रेट ऑफ डीप फेक्स, वी नीड AI बैक टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू डिटेक्ट द अनरियल। दिस इज important because it talks about science and technology which is like important AI की terms में। Now next is okay, this is about the test match.
देखने का जरूरत नहीं है। कुकिंग अप स्ट्रॉन्ग न्यू फिल्म शोज, फिल्म नहीं, फिल्म के ऊपर है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इतना टाइम नहीं। आर्काइव्स ये है पुराने न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स थे 1971 में क्या हुआ था, इंडियन पाकिस्तान जो वॉर हुआ था उसके बारे में, तो नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। Okay, news section. Now, India loses a crusader who revolutionized the cancer treatment. This is important. ये हमने बात किया था, ये कैंसर के बारे में उन्होंने अपने पूरा लाइफ को डिवोट किया था, तो इसके ऊपर है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज आपका सुप्रीम कोर्ट वाला जो फर्स्ट पेज है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। पुलिस फाइल टीडीपी लीडर्स हंगर स्ट्राइक, नहीं। हंगर लोकायुक्त पुलिस फाइल, ये देख लेना, ये लोकायुक्त होता क्या है, किस एक्ट के अंदर में आते हैं। और बेसिक चीज़, लोकायुक्त है, लोकपाल जो होते हैं, लोकपाल बिल जो आया था अन्ना हजारे के टाइम की वजह से, तो वो क्या है एग्जैक्टली, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतना कहानी इसका जरूरत नहीं है। बस लोकायुक्त गूगल में सर्च करो, विकीपीडिया पे पढ़ लो, खत्म। इससे ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट, पोस्ट हिस्टोरियन पासेस अवे ए नहीं, ए आई साइंस कंसल्टेंट एयरपोर्ट नहीं। केरला हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। 17-year-old sexually abused by over 40 by over 40 men. पॉक्स पॉक्सो एक्ट। सो ये पॉक्सो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। विकीपीडिया पे सर्च करो एग्जैक्टली है क्या यहाँ हो रहा है, एंड जस्ट रीड अबाउट इट। इतना पूरा डीप जाने का जरूरत नहीं, बट पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ लेना। तमिलनाडु पंजाब रिपोर्ट्स लोएस्ट वैक्सीन नंबर्स नहीं, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज कर्नाटका टू क्रिएट 20 लाख जॉब्स। कर्नाटका के बारे में हम लोग को नेशनल से मतलब होना चाहिए। टस्कर इंटेल, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एनिमल उसके ऊपर है, ये डेली का आता रहता है इसमें कि एलिफेंट्स को हर्ट हो गया है जो भी, तो उसमें आपको नहीं जाना है। बेल प्ली ऑफ अक्यूज, एक तो पढ़ो बेल क्या होता है, लॉयर बनने वाले पता होना चाहिए। प्ली ऑफ अक्यूज एंड एक्टर रेप केस नहीं, क्रिमिनल न्यूज़ का जरूरत नहीं है अपने को। नेक्स्ट इज द न्यूज सेक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज नॉट बायस, सीजीआई, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये हुआ था कि जो कमेटी फॉर्म हुआ था फार्म लॉज के लिए, उसमें से एक जन ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था कि मैं उस कमेटी का पार्टी बनूंगा, बट क्योंकि उन्होंने फार्म लॉज के लिए फॉर में बोला था, बट देन ही कुड बी बायस्ड। सो सीजीआई ने बोला है, मिस्टर लाइक शरद सर ने बोला है, तो इसको प्लीज देख लेना। नड्डा पोजेस सीरियस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू, नहीं। कांग्रेस टाइम टू स्कटल, नहीं। रिपील ऑफ फार्म लॉज ओनली सॉल्यूशन, राहुल गांधी, नहीं। पॉलिटिकल व्यूज नहीं चाहिए। बजट सेशन टू हैव क्वेश्चन। अब दो चीज, तो बजट सेशन क्या होता है, पार्लियामेंट के ऊपर ही है। क्वेश्चन आर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पॉलिटी और लीगल रीजनिंग वाले उसमें के लिए आपका नॉलेज के लिए आपको हेल्प करेगा। सजद लोने पुल्स आउट ऑफ गोपकर रिलायंस, नहीं। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज कांग्रेस सीक्स मोर सीट्स इन बंगाल टाई अप। कांग्रेस सीक्स मोर सीट्स इन, नहीं। पॉलिटिकल न्यूज़ अगेन जरूरत ही नहीं है, ये सब आपका है क्या होता है, ये सब टेंडर है, टेंडर का जरूरत नहीं है। इंडिया टू फ्लाई आउट वैक्सीन टू नेबर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ कहाँ कहाँ कैसे जा रहा है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एस आई है इशू फैक्ट, कोविड वैक्सीन नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं। हेल्थ टीम रश टू लक्षद्वीप, सो लक्षद्वीप हैज रिपोर्टेड फर्स्ट, ओके फिर फर्स्ट कोविड केस हुआ वहाँ पे, सो नॉट अ लॉट रिक्वायर्ड। 1.7 लाख हेल्थ वर्कर्स गेट कोविड-19, नहीं। इंडिया asks WhatsApp to revoke change. This is important. This is one of the important articles which can come in the exam, which should come WhatsApp privacy के ऊपर एंड जो डेटा शेयरिंग हो रहा है उसके ऊपर। सो जैसे जो EU का GDPR वाला जो रूल्स है उसके बारे में भी आ सकता है, मे बी पता होना चाहिए। प्रिवेसी प्रिवेसी एज अ टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। 15 migrants work run over by truck, no। शेयरिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और क्रिमिनल एक्ट, शेयरिंग ऑफिशियल सीक्रेट। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या होता है, 1923 में, if I'm not wrong, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ओएसए बोलते हैं इसको, उसके बारे में आप प्लीज पढ़ लेना क्या है यहाँ पे। दिस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये रहा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पढ़ लेना। मिलिट्री स्पेशलिस्ट टू गेट S-400, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। S-400 इज लाइक जो मिसाइल था जो जिसने इंडिया ने जो रशिया से खरीदा था, उसके बारे में ट्रेनिंग होने वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूएसए के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रेशर बना था इंडिया को यूएसए की तरफ से, सैंक्शंस लगने वाले थे, बट स्टिल इंडिया बॉट इट। सो या S-400 के बारे में। FIR लॉज अगेंस्ट वेब सीरीज मिर्जापुर, नो, नॉट एट ऑल। दिस इज इंपॉर्टेंट ना, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर टीवी जर्नलिस्ट का, नो। सेंटर आस्क टू एक्सटेंड जीएसटी ग्रांट। अब ये जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या भला है, इसको पढ़ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जीएसटी का बहुत वन ऑफ द हाईएस्ट
कलेक्शंस हुआ था दिसंबर में 2020 का। तो पढ़ लेना क्या होता है जीएसटी एग्जैक्टली। स्टूडेंट विद जस्ट पास इन, नए नेताजी का बर्थडे है, पराक्रम दिवस, इसको याद कर लेना बस कि पराक्रम दिवस होता है। टू बी ओके, नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एक वेस्ट बंगाल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अनदर कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट तांडव इन यूपी, नो 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 नो, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, ओफ, कार किस बारे में, कार नहीं, हमको अभी नहीं ये सब देखना है। लैम्बोर्गिनी इन द पैडी फील्ड, नो नो नो, ये सब आप इसमें खो मत जाना, टाइम वेस्ट मत कर देना, नहीं करना है, इसको देखना ही मत। शोकेस, ओके, तो हाउ टू साइन एस आर के, नहीं, फ्रीज फ्रेम नहीं, ये सब में आप मत घुसना, टाइम वेस्ट होगा आपका। हाउस ऑफ कोलम, समुद्र हम फीचर कोलम आर्ट, बस इतना सा सर्च कर लेना। अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए कि कोलम एग्जैक्टली क्या होता है, कोलम कोलम कौन सा होता है, क्या स्टेट में होता है और क्यों बनाया जाता है, बस। कार्टून्स मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना, बट हम लोग इसको एग्जाम के लिए नहीं देखने वाले, सो नो। Next is world. US will restore trade alliances. America will seek to remain a global power but renew cooperation. ओके, तो सिंस अब न्यू गवर्नमेंट आने वाला है यूएसए में, तो उनका पॉलिसीज बहुत सारा चेंज होने वाला है। उनका जो इंटरनेशनल अफेयर्स का जो सिस्टम है, पूरा चीज़ मैंने कैसे अप्रोच होगा उनका, व्हाट स्ट्रैटेजीज विल दे यूज, वो चेंज होने वाला है। सो नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट ठीक है, एक बेसिक पता होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा पढ़ने का डीप में ज़रूरत नहीं है। इंडिया के बारे में तो पहले जानना है। An inauguration modified by security and health threats. No. Kremlin dismisses calls to free Navalny. नहीं, ये हुआ था कि जो ऑपोजिशन थे उनके बारे में उनको पकड़ लिया गया था अंडर सम चार्जेस, तो उसके बारे में बेसिक एक ओवरऑल होना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। यूएसए वोंट लिफ्ट ट्रैवल बैन, बिडेन टीम, ये भी नहीं। एट बिडेन टू इंट्रोड्यूस बिल फॉर 8 ईयर सिटीजनशिप पाथ, नहीं। चाइनीज कोविड वैक्सीन फाइन टेकर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, ये एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, 1 मिनट लगाना है बस, ओवरऑल एक देख लेना कि क्या एग्जैक्टली न्यूज़ में हो रहा है। थाई वुमेन सेंटेंस, नहीं नहीं। सूडान ट्रूप्स डिप्लॉयड इन डाफर आफ्टर क्लैशेस, नो। यूएन कॉल्स एन इजराइल टू हॉल्ट वर्क एट वेस्ट बैंक, ओके। तो ये आप ऐसे देख सकते हो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसराइल का एग्जैक्टली इशू क्या था, मतलब ये सब वैसे देखोगे टॉपिक बहुत बड़ा है, बट ऊपर नीचे का थोड़ा चीज़ पता होना चाहिए अपने को, स्टोरी। तो कहानी की तरह उसको समझो। अगर आपको चाहिए कि मैं कहानी बना के आपको डालूँ जनरल नॉलेज का, बता देना कमेंट्स में, मैं वो भी कर दूंगा आप लोग के लिए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बिजनेस, सो सेंसेक्स जम्प्स 1.7 मिड स्टिमुलस होप्स, रुपी रिकवरिंग, ये वो। तो बेसिक एक बार देख लेना क्या, क्यों इतना स्टिमुलस है, बट आपको इन डिटेल इतना डीप नहीं पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स थ्रेशोल्ड फॉर फाइलिंग इंसॉल्वेंसी प्ली अगेंस्ट रियल डेवलपर्स, ओके। सो आईबीसी ये इंपॉर्टेंट था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, एग्जैक्टली क्यों ये आया था, क्या हुआ था, इसके बारे में पढ़ लेना एक बार। इन्वेस्टमेंट रूल चेंजेस में हिट अमेजोन, ऑलरेडी ऑल्दो इकोनॉमी नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस में, बट स्टिल क्वेश्चन आया 2020 में, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने को। इन्वेस्टमेंट रूल्स चेंजेस में हिट अमेजोन ई कॉम फॉर्म्स रिवैम्प विद मेजर गवर्नमेंट पर्पस, ये पढ़ लेना एक बार। पेट्रोल क्रॉसेज ₹85, नहीं, फ्लक्चुएट हो रहा है, अपने को कोई लेन देन नहीं है। विप्रो प्रमोटर्स चल, नहीं। इंडिया मस्ट बड़ा पड़ा था ग्लोबल इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ कांत सीईओ है, नीति आयोग के, इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंट टू बाय, नहीं। प्राइवेट का कोई भी कंपनी का, कोई भी कॉर्पोरेट का न्यूज आता है, नॉट इंपॉर्टेंट। एसबीआई म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेटर, ना। नेटिव 5G मॉडल मस्ट टू एड एजुकेशन, एग्री एंड हेल्थ केयर, दिस इज इम्पोर्टेंट, रविशंकर प्रसाद सर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर बैट्स फॉर ऑनलाइन रेगुलेटर, फॉर वन रेगुलेटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना इसको। Next comes sports. Fearless New India storms the Gaba Bastion, claim epic series. नहीं, not at all exam point of view से important है, but it was a historic win. Underdogs को लोग बहुत वो करते हैं, तो yep, it is a very good win. अब next is sport again, नहीं खत्म. So I'll just go on top again. So this was for 20th January. I just showed you कि within 60 minutes आपको cover करना है, 60 minutes, not more than that। आपको आप 18 days पूरे टाइम में डिवोट कर रहोगे। प्लीज़ उससे ज़्यादा टाइम मत लगाना, कुछ भी डाउट्स हो मेरे को बताना। इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना, बट टाइम वेस्ट मत करना, डोंट लेट इट पाइल अप। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप यू फाइंड इट टू बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।